So we were continuing with the HDI. We discussed with the HDI with the three components of economic development: education, health, and income. After that, we said that there was a change in the methodology of HDI in respect of earlier we have 1990s methodology. Then later on in 2010, we have changed the methodology of your HDI. Earlier we were taking the GDP, but later on we changed it to GNI per capita, purchasing power parity of US dollars. No doubt a few components like the adult literacy and gross enrollment ratio that has also changed, and it comes to be mean years of schooling and expected years of schooling. No doubt the life expectancy parameter remains constant, but only change comes up with the goalpost. Earlier we have 85 years of life expectancy, then we decreases to 83.5% of life expectancy as a maximum value. Further, one more thing was different regarding the both of the methodologies. Initially we were taking the arithmetic mean, but in the later methodology we said that we will not take arithmetic but will a geometric mean of the calculation of HDI. Now further we are continuing with the same indices. They said that IHDI, that is Inequality Adjustment Human Development Index. Inequality Adjustment Human Development Index. It is almost like the same of Human Development Index, but it just tells us about the inequalities, the dimensions of difference between the poor and the rich. It means if we are talking about the HDI value of any nation, कोई doubt है? पूछो? अच्छा. First of all, though, it introduced in 2014 IHDI, and in this IHDI we were talking about the inequalities. Inequalities represents with the poor and the rich. It means on an average we are saying the Human Development Index is this rank. इंडिया का टोटल HDI इतना है, that is representing the total number, total value, but in actual that number is not representing the true picture. Why? Because there is an inequality between the resources, inequality between the education status, inequality between the income status and health status of economy. So we need to understand how we can compare these two inequalities. That inequalities are to be in this. Inequalities between the rich and poor. It means, suppose we have, we said that we are talking about a long and healthy life, we are talking about education index, mean of your schooling, expected years of schooling, we are talking about GNI per capita. We said that our GNI per capita, which is standard of living representation, that is 6950, 6,950 US dollars. It is on an average value of Indian economy. But maximum population is not getting that much of money. Average means like the same example we used to take into per capita income. हमने ये average निकाला कि इंडिया की per capita income कितना है 96,000 rupees on the constant prices and 1,72,000 rupees on the behalf of current prices. मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसका इससे टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है. हमने आपसे बताया था कि पर कैपिटा इनकम भी कांस्टेंट एंड करंट प्राइसेस पे निकाली जाती है. अगर पर कैपिटा इनकम डिफरेंट प्राइसेस पे निकाल रहे हैं, एवरेज है वो, क्या हम सबकी एवरेज इनकम उतनी है? नहीं है. रीजन क्या था? Inequalities. Same thing they said that in Human Development Index B, if you are saying this is the GNI per capita of US dollars, is it equal to all? No. It means that Human Development Index, which is representing the picture of economy as a development perspective, it's not a true picture. It represents there is a gap between the rich and poor. If this gap is more, it means our Human Development Index is not actually representing the true picture. So IHDI represent कि human development के अंदर कितना inequality आ गया. तो वो inequality किस basis पे हम calculate कर रहे हैं? The poorest and the richest people. तो उनके बीच में जितना gap ज्यादा होगा, उतना ज्यादा हमारा Human Development Index में inequality बढ़ जाएगी. Getting? So we are taking the three components same ले रहे हैं, वही mean years of schooling, expected years of schooling जो हमने कल HDI में लिया. ठीक है? Components हमारे same रहेंगे, डेटा हमारा सेम रहेगा, गोल पोस्ट हमारे सेम रहेंगे, कैलकुलेशन हमारी सेम रहेगी. ओनली वी विल लाइक टू फाइंड आउट विद द richest 20% एंड poorest 1%. उनके बीच का गैप हम लोग को देखना है. सो वी सेड दैट द इनकम का हम सबसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. द इनकम शेयर रिसीव्ड बाय
20% richest people, income shared by 1% poorest people. इंडिया के 1% पुअर पीपल जो हैं वो 22% वेल्थ ले रहे हैं, 1% लोग 22 इनकम को रिसीव करते हैं, एंड 40% richest people are getting 21% of income. So this gap represents, इक्वल होना चाहिए था ना, वही गिनी कोएफिशिएंट अलग हो गया ना, इसका लॉरेंज कर्व अलग चली गई, तो वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी कुछ लोगों के हाथ में तो बहुत सारी इनकम है और बहुत सारे लोगों के हाथ में कम इनकम है। इसका मतलब उनके बीच में इनइक्वालिटी है, सबको बराबर 6,950 रुपीज यूएस डॉलर्स नहीं मिल रहे, कुछ लोग सिर्फ $600 के ऊपर, हाफ ऑफ द 20% पॉपुलेशन जो है वो $600 ले रही है, और मैक्स जो बड़ी पॉपुलेशन है वो मोर देन $6,000 से ले रही है। तो ये रिप्रेजेंट करता है इनइक्वालिटी बिटवीन द रिच एंड पुअर। Component same, calculation same, parameters same, everything is same, just to find out adjustment regarding to the rich and the poor. That represents the inequality. Higher the gap, higher will be the IHDI value. Higher will be the IHD value, higher the inequality. Very good. So higher will be the inequality. It may be जब हम IHDI के बेसिस पे हम जब HDI निकालते, IHDI निकाले, तो उसका रैंक कुछ और आए, IHD का रैंक कुछ और आया, IHDI का रैंक अलग आए, तो उन दोनों के रैंक्स में भी डिफरेंस आ जाता है कि आप HDI की वैल्यूज के बेसिस पे तो 130th रैंक लेके आ रहे हैं, 132 और 130 रैंक लेके आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है IHD के बेसिस पे आपका रैंक और फॉल डाउन हो जाए, गेटिंग आप 140 पे पहुंच जाए या 136 पे पहुंच जाए, तो आपके बीच में इनइक्वालिटी जैसे जैसे बढ़ती रहेगी, आप अपनी मेन HDI रैंक से उतना दूर जाते रहेंगे, और अगर अच्छा होगा तो आप ऊपर चले जाएंगे, इनइक्वालिटी कम है अगर आपकी कंट्री में। सो दैट मेजरली कैलकुलेट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनइक्वालिटी, एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वी कैन से HDI व्हेन इट इज एडजस्टेड फॉर इनइक्वालिटी एडजस्टमेंट, द 25% ऑफ लॉस इज देयर इन इंडियन इकोनॉमी। जब हम इंडिया की डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसको IHDI निकालते हैं, तो हमारे डेटा के बीच में 25% का गैप आ जाता है। इसका मतलब इनइक्वालिटी इज ऑलमोस्ट 1/4 क्वार्टर का हमारा गैप है इनइक्वालिटी में। देन अकॉर्डिंग टू दिस इंडियाज रैंक इज 108 out of 199 countries. So that this data is about 0.475 हमारी जो वैल्यू है, उसमें हमारी वैल्यू, अभी देखिए इंडिया में रिचेस्ट एंड पुअर का इनइक्वालिटी ज्यादा है, बट कुछ नेशंस में बहुत ही ज्यादा है और कुछ नेशन में बहुत कम है, माइन्यूट डिफरेंस है, तो उसके अलग रैंक बनेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर जैसे इनइक्वालिटी के बेसिस पे आपने वैल्यूज निकाल ली, उनके रैंक्स अलग बनेंगे, HDI के रैंक्स अलग बने, IHDI के रैंक्स अलग बनेंगे, तो उन गैप्स रैंक्स के बीच में गैप हो सकता है। So this is IHDI, it is not much more, but just you need to understand what is IHDI. What is that? Inequality Adjustment Human Development Index, and that is all about the difference of all the components, all the goalposts, all the methodology, only with the richest and the poorest people of the economy, and there is a 25% of loss because of inequality adjustment to HDI in India. Done. Now we are moving towards another components. This is a basically important one. Basically अब हम बात करेंगे जेंडर से रिलेटेड इंडाइसेस की। First index is Gender Development Index, then Gender Empowerment Index Measurement, जेंडर वुमेन एम्पावरमेंट मेजर है, बट उसको जेंडर एम्पावरमेंट मेजर भी बोलते हैं। इन दोनों के कंप्लीशन के बाद रिप्लेस हुआ GII, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, उसके बाद हमारा हुआ ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो वी विल टॉक अबाउट ऑल द गैप्स व्हिच इज रिगार्डिंग टू द जेंडर ओनली। ओके, थोड़ा सा डिफरेंस है, मेथोडोलॉजी के ऊपर ज्यादा काम नहीं किया हुआ है कि दे आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू कैलकुलेट इट, कुछ खास नहीं, सिर्फ वही अर्थमेटिक मीन निकाला, ज्योमेट्रिक मीन निकाला, दैट इज अ सिंपल थिंग। ओनली थिंग इज दैट दे आर टॉकिंग अबाउट द पैरामीटर्स। कुछ पैरामीटर जैसे अभी HDI आया, हमें उसमें क्या कमी लग रही है, वी नीड टू टॉक अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ HDI एंड IHDI एज वेल। क्या है IHDI में आपको क्या गड़बड़ लगा? नहीं, वो तो इनइक्वालिटी दिखा दिया ना फिर हमने, IHDI में हमने उसकी बात कर ली। 3 कंपोनेंट, एजुकेशन, हेल्थ और इनकम। जैसे PQLA में हमें क्या गड़बड़ लगी कि 2 कंपोनेंट हेल्थ के थे,
और एक सिर्फ एजुकेशन का था, इनकम की बात ही नहीं की गई थी, तो हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, हमने उसमें ड्रॉबैक निकाल दिया, उसका रिफाइनमेंट हमने एचडीआई में किया. सो व्हाट इज द ड्रॉबैक्स? अदरवाइज इट्स गोइंग ऑन, इट्स नॉट लाइक यू विल गोना चेंज इट, बट स्टिल recommendations are coming up. तो what you feel? HDI में what are the limitations? कुछ भी? जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा उसको उतनी ज्यादा एजुकेशन होगी, जिसके पास जितना कम होगा उसको उतनी फैसिलिटीज सामने होगी. Don't you feel so though? As a population is an important parameter? We can't take it as a population, but we should divide the countries on the behalf of their sizes and the population as well. आप एक स्विट्जरलैंड को इंडिया से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? रशिया को पाकिस्तान से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? दो कंट्रीज जो एक दूसरे के बराबर हो ही नहीं सकती, वो इक्वलाइज्ड कैसे कर सकते हैं? उनको रैंक के बराबर सबको एक ही इक्वलिटी में नापना इज नॉट जस्टिफाइड. Somewhere somehow this is one important thing, that we cannot calculate all the nations, they are coming into the other from resources के अलग चीजें हैं. सबसे पहला नेचुरल रिसोर्सेज की कहीं बात नहीं की. जो कंट्री अपने आप से नेचुरल रिसोर्सेज में हाई अप है उसकी तो इनकम बढ़ने वाली ना, जीडीपी बढ़ेगा ही, उसका पर कैपिटा इनकम उसका बढ़ेगा ही. जिस कंट्री में अभी उसी के बाद कि फीमेल का कंट्रीब्यूशन, इस वजह से जीआईपी जीएनडीपी हमारा निकलना शुरू हुआ, क्योंकि एचडीआई में उन्होंने जेंडर को कहीं रिप्रेजेंट नहीं किया, कहीं ये नहीं बताया कि फीमेल की कंट्रीब्यूशन कहीं इंपॉर्टेंट है या नहीं है. एज वी यूज्ड टू डिस्कस इन अदर, लाइक हरियाणा's per capita income is on the topper state. Like we will exclude the Goa and Sikkim because they're the very small states. That's why we said that ना गोवा को आप महाराष्ट्र से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? That is the same example should be taken up to the world level. कि आप गोवा और सिक्किम दो छोटे स्टेट्स हैं, अगर उन दोनों को एक्सक्लूड कर देते हो तो थर्ड के बाद फोर्थ फिफ्थ उसको निकाल दो, फिर से दिल्ली और चंडीगढ़ निकाल दो, यूटीज आ गए, तो ऑलमोस्ट हरियाणा इज कमिंग ऑन द फिफ्थ स्टेज एंड समवेयर समहाउ इट इज ऑन थर्ड स्टेज. बट इन द जेंडर इनइक्वालिटी एंड द सेक्स रेशियो हरियाणा सबसे लास्ट में. हरियाणा में जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है एंड सेक्स रेशियो इज ऑलमोस्ट ऑन डिप्राइव्ड वे. सो इट इज अ क्वेश्चनेबल थिंग कि क्या फीमेल का जीडीपी में, डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? कि फीमेल तो है ही नहीं वहां, मतलब नेग्लिजिबल मतलब मेरा कहने का है कि रेशियो बहुत कम है. 800 के सीरीज में, अभी तो बढ़ गया, आई डोंट नो हाउ, 800 के सीरीज में जो पूरे इंडिया की एवरेज में सबसे कम है. पूरे स्टेट्स को जब लाइन में लगाते हैं तो सेक्स रेशियो में हरियाणा सबसे नीचे पे आता है विद इन द 2 years बैक, 3 years बैक. नाउ तो इट इज बीइंग रिकवरिंग अप. तो इसका मतलब जीडीपी बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, स्टेट सबसे हाईएस्ट इनकम जनरेट कर रहा है, फीमेल का कोई है ही नहीं, फीमेल है ही नहीं. तो जेंडर इक्वालिटी, क्या फीमेल की प्रेजेंस होना, फीमेल का कंट्रीब्यूट करना जीडीपी में कोई रोल प्ले नहीं करता? Isn't a question? So that's why they said that we need to find out कि only human development calculate कर लेना is not the answer. आपको ये देखना है कि अगर जितनी फीमेल वहां डिप्राइव्ड है, अगर उन सबको वो रिसोर्सेज दे दिए जाएं और उनको सारे फीमेल्स को उतना स्पेस दे दिया जाए, तो क्या जीडीपी डबल हो जाएगी? 50% फीमेल तो होगी, 48% तो है ही है. तो 48 क्यों? क्योंकि रेशियो 100,000 by 1000 का तो नहीं है, 800,000 का है. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? कि जो रेशियो है वो 1000 का नहीं है ना. 1000 का होता तो बराबर 50-50% थे, फिर तो आप एवरेज के बराबर होते, जितने मेल है उतनी फीमेल है, फिर तो इनइक्वालिटी होती नहीं. इनइक्वालिटी है क्यों है? क्योंकि द नंबर ऑफ मेल एंड द फीमेल्स आर नॉट इक्वल. नंबर ऑफ फीमेल आर लेस एंड मेल आर मोर. तो इनइक्वालिटी हमें दिखी नंबर के अंदर, काउंट्स में. जब ये काउंट ही कम है तो ऑब्वियसली ये डोमिनेटिंग सोसाइटी से डिप्राइव्ड है, उनसे दबा हुआ है, तो इनको रिसोर्सेज भी नहीं मिले, एजुकेशन भी नहीं मिली, हेल्थ भी नहीं मिली, फैसिलिटी ऑफ मार्केट पार्टिसिपेशन कुछ नहीं मिला. तो इनके ना होने के बावजूद भी आप टॉप पे जीडीपी लेके आ रहे हो, एसडीपी लेके आ रहे हो, स्टेट सबसे हाई है पर कैपिटा इनकम में. अगर इनका कंट्रीब्यूशन हो जाए, क्या आपकी जीडीपी डबल हो जाएगी? होनी चाहिए ना. सो दिस इज द क्वेश्चन. ये क्वेश्चंस आपको आगे इन फ्यूचर जनरल में पूछे जाते हैं कि दिस इज द रियल स्टोरी, व्हाट यू विल रिएक्ट एंड हाउ यू विल रिएक्ट ऑन दिस थिंग्स. तो ये चीजें थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो कि इन डिफरेंसेस का क्या रिजल्ट आते हैं. ठीक है, चलिए लेट्स कम टू द जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स. देन आफ्टर वी कम टू द IHD, मूव टू द
Gender Development Index that came into 1995. First of all, 1995, and this was basically two type of measures. The GDI measured the disparity in HDI by gender. Now you can find out one thing. HDI with respect to inequality adjustment is called IHDI. HDI with respect to gender disparity is called GDI. तो ये है, इसका मतलब इसके कंपोनेंट्स भी सेम रहने वाले हैं. सिर्फ डिफरेंस कहाँ आएगा कि मेल और फीमेल के अंदर वही जो डिफरेंट डेटा आपने निकाला था किस चीज का, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, वो मेल का भी निकाल लो, फीमेल का भी निकाल लो. फिर आप एजुकेशन का देखो, मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर मेल, फॉर फीमेल, expected years of schooling for male and female, GNI per capita for male and female, and then after find out the male index and the female index, whatever the difference between the both, that is to be called GDI index का difference. हम HDI के components को ही continue करके हम सिर्फ और सिर्फ gender के perspective को count करना चाहते हैं. Getting? So this represents the GNI per capita as we have a data out of it. They said that GNI per capita for women and GNI per capita for men, $2277 it is. ये वाला हमारा GNI per capita किसमें होता है? PPP US डॉलर्स में होता है ना. तो ये वही बात कर रहे हैं कि GNI per capita with respect to purchasing power parity, it's 2277, but it is 10633 US dollars. So this is the disparity between the income status of the male and female. According to the values of 2000, ये जो purchasing power parity है 17 के basis पे, purchases के basis पे, तो उसमें जो difference आ रहा है आपकी income का, इतना ज्यादा gap है. तो ये क्या represent कर रहा है कि इंडियन इकोनॉमी में हमारे में जेंडर की डिस्पैरिटी कंपैरेटिवली ज्यादा है. जो इनकम सोर्स या इनकम का स्टेटस मेल को मिल रहा है वो फीमेल को नहीं मिल रहा. उनको एक सब्सिडरी इनकम समझा जाता है, उनको मेन इनकम नहीं समझा जाता. इस वजह से हमारी इनकम इक्वालिटी बढ़ रही है, जेंडर इक्वालिटीज बढ़ रही है. ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वी हैव अ रैंक इज 153. हमारा GNI GDI में जो रैंक है दैट इज 153 रैंक. And it is almost like the same thing जो हम number of total में से करते हैं ना, वो तो HDI वाले नंबर ही हैं, टोटल जो लोग हैं जहां से कैलकुलेट करें वो सारा वही है. तो अल्टीमेटली वी हैव द 153 रैंक एंड द वैल्यू 0.849 with the rank with 0.849. इसका मतलब देखो हमारी 8 वैल्यू लेकर भी हम रैंक इस पे आ रहे हैं. इसका मतलब वर्ल्ड लेवल पे जेंडर डिस्पैरिटी कम है. देखो हमारी HDI की वैल्यू क्या है 0.633, इसकी वैल्यू 0.8, तो वो कम वैल्यू लेके हम 130 पे हैं, ये ज्यादा वैल्यू लेके हम 180 पे हैं, 150 पे हैं, है ना, मतलब पीछे है ना, उससे और पीछे है. मतलब इसमें लोगों की बाकी कंट्रीज जेंडर इक्वालिटी में ज्यादा बेटर है हमसे. सो दैट रिप्रेजेंट्स हमारा रैंक और 150 पे आ गया. 130 पे होता तो नियर बाय होते, 130 पे आने का मतलब 150 पे आने का मतलब और दूर है. सो हमारा रैंक कंपैरेटिवली पीछे है जेंडर इक्वालिटी के बेसिस पे. सो दिस रिप्रेजेंट्स इकोनॉमी इज नॉट इन द वेरी गुड स्टेट ऑफ द पर कैपिटा इनकम. सो इसमें 2-3 पॉइंट्स लिख लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ जेंडर सेंसिटिव डायमेंशंस. इसका डिफरेंट नेम जो कई बार यूज कर लिया जाता है, इट इज कॉल्ड जेंडर सेंसिटिव डायमेंशंस. Dimensions. The country grouped into 5 groups. Country grouped into 5 groups based on absolute deviations. Absolute deviations from gender parity in HDI. Gender parity in HDI. Okay.
इसी के बाद, इसी के साथ हमारा आया था जेंडर एम्पावरमेंट मेजर, इसको वुमेन एम्पावरमेंट मेजर भी बोलते हैं, जेंडर एम्पावरमेंट मेजर। इसको पूरा ही लिखते हैं क्योंकि इसके कंपोनेंट्स अलग हैं, मैं शुरू से लिख रही हूँ, रुक जाइए। ये भी यूएनडीपी निकालता है क्योंकि कॉमन है ना, सारे फैक्टर्स सेम रहेंगे, तो इसको आपने कुछ ज्यादा दोबारा से सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वही कंपोनेंट्स हैं, वही गोल पोस्ट है, सब कुछ वही चल रहा है। सिर्फ डिफरेंस, ऑर्गेनाइजेशन भी यूएनडीपी है सेम, क्योंकि 1995 में हमने 1990 के बाद पहली बार 2 जेंडर के मेजर्स निकाले थे, तो वही वाले हैं सारे, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। जो नए होंगे तो उसका हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट इज जेंडर एम्पावरमेंट मेजर। जेंडर एम्पावरमेंट मेजर को वुमेन एम्पावरमेंट मेजर भी बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव नेम अगर आपको लेना है। इट इज अगेन इन 1995, दोनों जो है हमारे 1995 में ही आए थे, ठीक है जी। अभी इसके अंडर हम लोग कुछ कंपोनेंट्स को अलग किया, अगर अदरवाइज तो हमारा जीडीआई चल ही रहा था, पहला वाला जो इससे पहले किया जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स तो चल ही रहा था, वही कंपोनेंट्स थे, लेकिन उन्होंने कुछ नए कंपोनेंट्स ऐड करके एक अलग तरह का इंडेक्स निकाला। दैट इंडेक्स वाज वुमेन एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट वर्ड यूज हो रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसकी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, जबकि पिछले वाले में हमने फीमेल की इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की बात नहीं की। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द 3 कंपोनेंट्स। द फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, economic participation. Second is decision making, and the third one is yours, the power over economic resources. You can see all 3 components are talking about the empowerment. आपकी इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव को बता रहे हैं तीनों के तीनों पॉइंट्स। डन। व्हाट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ थ्री पॉइंट्स? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन सेज कि इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी में किसी भी फीमेल का पार्टिसिपेशन कितना है विद इन अ पार्लियामेंट सीट्स। इसका मतलब आप इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में फीमेल कितना रोल प्ले कर रही है। सो अंडर दिस विल से प्रोपोर्शन ऑफ द सीट्स, लिख लीजिए, द प्रोपोर्शन ऑफ सीट हेल्ड बाय वुमेन इन नेशनल पार्लियामेंट। The number of seats held by women in the national parliament. पार्लियामेंट में फीमेल का कितना परसेंट रिजर्वेशन है या कितने परसेंट सीट्स हैं, टोटल नंबर को काउंट कर लें, जितने लोग वहां बैठे हैं पार्लियामेंट में उसमें से फीमेल कितना है, तो इससे पता चल जाएगा कि रेशियो ऑफ डिसीजन, इकोनॉमिक पावर कितने लोगों के हाथ में आ रहा है, फीमेल के हाथ में आ रही है कि नहीं आ रही है। सेकेंड इज अ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मीन्स हु विल टेक अ डिसीजन फॉर यू? यस, सम ब्यूरोक्रेट्स, सब एडमिनिस्ट्रेटर्स, टॉप पॉलिसी मेकर्स, या फिर आपके कुछ मैनेजर्स जो हाई रैंक पे हैं, या फिर आपके प्रोफेशनल्स, जो भी टॉप रैंक जॉब्स हैं उसमें फीमेल कितनी है। ब्यूरोक्रेट्स में कितने नंबर पे सीट्स पे कितनी है, पॉलिसी मेकिंग में फीमेल कहां पर है, हमारे मैनेजरियल डिसीजन लेने में फीमेल का कितना परसेंटेज नंबर है, वो सारा रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिसीजन मेकिंग जो है वो फीमेल के हाथ में है या नहीं है। चाहे वो बैंक्स के टॉप एग्जीक्यूटिव्स हो जाएं, चाहे वो हमारे पार्लियामेंट मेंबर, समवन एल्स, पॉलिसी मेकर्स आर, थिंक टैंक्स आर डिफरेंट वन। सो कितने हमारे पॉलिसी मेकर्स में कितने ज्यादा है, ब्यूरोक्रेट्स कितने हैं, these all decision makers, that is to be a second component. Again it shows the economic power of a female. Third one is power of economic resources. आपके पास फीमेल के पास कितनी अर्निंग के सोर्स हैं, do they have some income sources, do they have some assets, they have some properties with their own name. So that represents the economic power in the female hand. Either they are earning or they are not earning.
So we can collect the data of all the three, which represents the economic position and economic power of female in any nation. इन तीनों का कैलकुलेशन करके हम टोटल करके एवरेज निकाल के, इट्स जस्ट नॉर्मल, कैलकुलेट द 3 डिवाइड बाय 3, यू विल गेट द एवरेज वैल्यू. वो एवरेज वैल्यू आपको ये बताएगी कि किसी कंट्री में फीमेल के पास इकोनॉमिक पावर कितनी है, फीमेल के पास डिसीजन मेकिंग पावर कितनी है, फीमेल के पास अपनी इकोनॉमिक पोजीशन कितनी है, होल्डिंग ऑफ एसेट्स एंड होल्डिंग ऑफ इनकम कितनी है, एंड दैट रिप्रेजेंट्स द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द इकोनॉमी. सो दैट अगेन रिप्रेजेंट 0 to 1, 0 नियर बाय, 1 इज डिस्पैरिटी. 1 का मतलब दोनों के बीच, 0 का मतलब दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं है मेल फीमेल के बीच में, 1 का मतलब उन दोनों की इनकम स्टेटस, इकोनॉमिक पावर, सोशल स्टेटस में उतना ज्यादा गैप है, डिस्पैरिटी बढ़ गई. तो ये दोनों चीजों की रेंज है 0 से 1 के बीच में. डन. आफ्टर दैट वी सेड दैट ये दोनों जो हमारे थे, अभी देखो जो पहला वाला हमने किया उसमें हम वही ले रहे हैं, हेल्थ इंडेक्स, इनकम इंडेक्स एंड एजुकेशन इंडेक्स. इन तीनों को लिया हमने GDI में, और एम्पावरमेंट मेजर में हमने लिया इकोनॉमिक स्टेटस, डिसीजन मेकिंग एंड इकोनॉमिक पावर, है ना. इसमें रिसोर्सेज का पावर है, इसमें पार्टिसिपेशन है. तो पार्टिसिपेशन एंड रिसोर्सेज ये कर लो. चलो, ये चीजें एक अलग चीजों को बता रही हैं, हेल्थ, एजुकेशन, इनकम स्टेटस को. ये उनके डिसीजन मेकिंग, उनके होल्ड, उनके डिसीजन को बता रही है. तो उन्होंने क्या किया इन द लेटर ऑन स्टेज, दे कम अप विद द न्यू थॉट इन 2010. ये 1995 में थे दोनों, UNDP कर रहा था. 2010 में उन्होंने इन दोनों को मर्ज करके एक और नया इंडेक्स बना दिया, दैट इज GII, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स. So now we will talk about gender inequality index, जिसमें इन दोनों के कंपोनेंट्स को मर्ज अप किया गया है. ठीक है. So we are moving to the third one, that is gender inequality index. First of all, it is in 2010, same as UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू ही होता है. रेंज बिटवीन 0 to 1, ये सारी चीजें वही हैं जो मेन गोल पोस्ट में हमने हर एक में रखी हैं. डन. ये था रिप्लेसमेंट ऑफ बोथ GDI और GEM, एम्पावरमेंट मेजर का रिप्लेसमेंट कर दिया कि उसमें जो जो कंपोनेंट अलग अलग थे उनको मिलाकर एक कंपोनेंट बना लेते हैं और नया इंडेक्स बनाते हैं. इसमें हमने 3 चीजों को लिया. एक हमने लिया हेल्थ, एक हमने लिया एम्पावरमेंट, एक हमने लिया लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन. ओके. अभी देखिए ये पीछे वाले दोनों कंपोनेंट का मेजर मिक्सअप है. हेल्थ वाला हमने वहीं से ले लिया, ये एम्पावरमेंट भी वही पार्ट है, पार्टिसिपेशन आपका इनकम और पावर दोनों का पार्टिसिपेशन हो गया. तो ये 3 कंपोनेंट्स इन दोनों का, GDI का और GEM का कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट था. रिप्लेसमेंट नहीं था, वो चल रहे हैं, बाकी इंडेक्स अभी चल रहे हैं, बट ये उसका एक रिफाइंड वर्जन उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया. नाउ as we said that we are on the topic of health, हमारा health special reference to female क्या हुआ? So we will talk about some basic features regarding to the productivity of female. So we are taking the first one is maternal mortality rate. इसका पहला component जो है, क्योंकि मदर की हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? maternal mortality rate. Maternal mortality rate says it is just the number of female dies during the birth of a child. So that is considered to be the poor state of economy if there is a more female deaths are there.
गेटिंग एंड ये फीमेल की हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है कि पॉजिटिव साइड पे कि नेगेटिव साइड पे है. सेकंड होता है हमारा इज एडोलसेंस फर्टिलिटी रेट. Lesser will be the development, lesser will be the value, higher will be the development. But on this side, adolescence fertility rate means the number of female, how many number of female she can produce over a long period of time. So that represents the health of the female. If it is being more burdened, it means it is a burdensome. The number of child she'll bear, the health will be deteriorate. Isn't it? So that depends, is it a burden for her to bear a child, or it is a freedom for a female to bear a less or two number of child. If she's not producing any child, even though she's okay, or if she has to produce a 6 to 7 children, so that depends upon the, no doubt, it is a somewhere somehow it's a fertility rate, how many children she can produce, but it depends of the status of women. If she has income source, if she has her say, if she has her decision making, she cannot produce more than 2 child. But if she is underprivileged, if she is depending upon the monetary sense on the male counterpart, then she has to produce whatever the being produced by asked by the family. Are you getting my point? तो हमें ये देखना है कि फीमेल को अपनी इच्छा से how many child she want to produce, वो फ्रीडम है कि नहीं. अगर ज्यादा चाइल्ड बियर करने की पॉसिबिलिटी तब नहीं होगी जब उसके पास इकोनॉमिक पावर नहीं होगी. अगर उसका डिसीजन मेकिंग उसका अपना होगा तो वो 6 to 7 चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं करेगी. गेटिंग? तो ये कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है. तो बोथ ऑफ द कंपोनेंट्स कमिंग अंडर द हेल्थ. सेकेंड इज एम्पावरमेंट. एम्पावरमेंट की अभी बात हमने की, इसके अंदर 2 चीजें आ गई हमारी. एक तो हो गया वही बात, द शेयर ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में कितनी सीट्स जो है फीमेल के द्वारा, शेयर ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट सीट्स. डन. ये वाला कंपोनेंट हमने वहीं से उठाया, जेंडर डेवलपमेंट एम्पावरमेंट मेजर में से. एक हमने ले लिया सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, the number of female those are getting the level को attain कर रहे हैं. वैसे हमें चलो आपको मैं यहीं से ट्राई करती हूँ समझाने की. शेयर ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट सीट्स, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन अटेनमेंट लेवल ऑफ फीमेल, ये दोनों करते हैं. अब हम ले रहे हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या होता है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, यस. लेबर के अंदर कितना पार्टिसिपेशन फीमेल का है? लेबर फोर्स क्या होती है? वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन. सबसे पहले तो ऑल आर नॉट कंसीडर्ड एज अ वर्कफोर्स, वो अलग होती है. आप सारी पॉपुलेशन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन नहीं हो. आप में से कौन से लोग वर्कफोर्स हैं? 15 to 59 वाले, वो पॉपुलेशन का वो हिस्सा जो एक्चुअल में वर्क करने के लिए कैपेबल है, लॉजिकल है, और जिनको कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है. कॉन्स्टिट्यूशन तो सबको अलाउ करे, बट ऑन द बिहाफ ऑफ पॉपुलेशन डिविडेंड हमने जिनको चाइल्ड लेबर के अंडर नहीं रखा हुआ और 65 को हमने रिटायर कर दिया, सो दैट वी आर टेकिंग द नंबर ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन द एज ऑफ दिस अबव 15 इयर्स के ऊपर वाले लोग इसके अंदर आएंगे. वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट दिखाता है कि मेल और फीमेल दोनों है. टोटल वर्कफोर्स में मेल भी है और फीमेल भी है. तो हम इसमें वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट में जितने भी लोग वर्किंग कर रहे हैं, वर्क एज लेबर फोर्स, जो भी लोग टोटल वर्किंग में अपनी लेबर फोर्स के रूप में अपने आप को सर्व कर रहे हैं. वुमेन पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स, फीमेल का पार्टिसिपेशन कितना है? मेल का भी है, फीमेल का भी है, दोनों का है. ठीक है जी. इसमें फीमेल भी वर्कफोर्स में है,
मेल भी वर्कफोर्स में है। अभी दिखाइए, अभी ये वाला इंडेक्स तो स्पेसिफिकली किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए। ना तो फर्टिलिटी मेल की प्रोडक्शन की हो सकती है, ना मैटरनल मोर्टेलिटी मेल की हो सकती है। ये दोनों कंपोनेंट्स किसके हो गए? स्पेसिफिकली फीमेल के हो गए। गेटिंग इट? और ये कौन सा इंडेक्स बन गया? ये हेल्थ इंडेक्स बन गया। गेटिंग? इसमें से सब कुछ डिवाइड होगा। अभी इसमें हम ऐसा कर ले, 1 1 2 2 3 3, अगर आपको समझ आ जाए, नहीं तो मैं एक और चीज बना दूंगी, शायद उससे समझ आ जाए। शेयर ऑफ women participation in the seats, parliament seats, share of women in the parliament seats। इसमें अगर पार्लियामेंट सीट में विमेन का शेयर है तो मेल का शेयर भी है। तो ये एक साइड पे ले लो फीमेल वाला, फीमेल 1, और यहां पे क्या आ गया? मेल 1, मेल का शेयर। इसमें से ही हमने, इस शेयर में से, यहां से मैंने ये वाला फीमेल का शेयर यहां ले लिया और मेल का शेयर मैंने यहां पर ले लिया। इसी तरह हमारा सेकंड कंपोनेंट क्या है? सेकेंडरी और हायर एजुकेशन लेवल अटेनमेंट। फीमेल भी इसमें अटेन कर रही है और मेल भी इसमें अटेन कर रहा है। मेल भी तो ले रहा है ना एजुकेशन। थर्ड कंपोनेंट क्या है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। फीमेल भी लेबर फोर्स, फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अलग ही रहने दो चाहे, फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एंड मेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। गेटिंग माय पॉइंट? तो इनसे क्या, इन दोनों पॉइंट से क्या बन रहा है हमारा? एम्पावरमेंट इंडेक्स। किसका? फीमेल का। ये क्या बन रहा है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ फीमेल। ये बन गए। तो ये तीनों मिलकर क्या बन गए? फीमेल का जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, इजंट इट? यहां से ये दोनों तो फीमेल के हैं, मेल के हैं नहीं। इन दोनों को मिला के क्या बन गया? मेल का इंडेक्स। इन दोनों चीजों में, कौन कौन से में? एम्पावरमेंट में और लेबर फोर्स में, क्योंकि ये दोनों चीजों तो मेल का पार्टिसिपेंट है ना, इन चीजों को हम मेल को भी तो काउंट करेंगे। सो ये कंपोनेंट हो गया मेल का, ये हो गया हमारा फीमेल का। और अगर इन दोनों के बीच में गैप बढ़ता है, then it means there is inequality, gender inequality is higher। क्योंकि इन कंपोनेंट को हम नहीं ले सकते, मेल के लिए, ये फीमेल के लिए रिजर्व्ड है, उनमें से हमने डिवाइड कर लिया फॉर द ऑल। गेटिंग माय पॉइंट? So this represent the gender inequality index in India, like how the number and the measure of inequality can be calculated with respect to gender specific। Then how to calculate it? अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है? वही है सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्रीगेट अक्रॉस द डायमेंशन ऑफ ईच ग्रुप एंड फाइंड आउट द ज्योमेट्रिक मीन। उसका टोटल किया, इन दोनों का टोटल करके डिवाइड बाय 2 कर दिया, इसका 1, इसका 1, देन उसका अर्थमेटिक मीन। पहले अर्थमेटिक मीन, फिर उसका ज्योमेट्रिक मीन, जैसे हमने कल HDI में किया था। तो वही कॉन्सेप्ट, वही मेजर हम अप्लाई करते हैं इसमें। ठीक है जी। अभी कुछ डेटा इसके रिगार्डिंग आप लिखिए। वन थिंग यू नीड टू आस्क, कि आपने इतने सारे कंपोनेंट्स लिए हैं, इन सब कंपोनेंट का डेटा कौन कलेक्ट करेगा? है ना? वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये फॉर्मूला बना दिया, HDI UNDP ने बना दिया, या UNDP के अंडर ये फॉर्मूला बन गया, या GNI या GPI GDI जो भी हमने बनाए। लेकिन उसका डेटा तो हर कंट्री, अगर आपकी कंट्री में आपसे कहूं कि आप लेबर ब्यूरो का ये लेबर फोर्स का डेटा लेके आओ कि इंडिया में कितनी मेल वर्कर्स हैं और कितने फीमेल वर्कर्स हैं, तो कहां से लाएंगे आप? बताएं? नहीं, यू शुड आस्क ना, कि इस तरह से जब हम डेटा बनाते हैं, कोई भी इंडेक्स बनाते हैं, उस इंडेक्स में, ये तो आपने इंटरनेशनल लेवल पे बोला है, ये सारा डेटा कहां बन रहा है, ये फॉर्मूलास कहां बन रहे हैं? इंटरनेशनल लेवल पे। सो उस इंटरनेशनल लेवल पे हर कोई ऑर्गेनाइजेशन तो होगी ना जिसको ये काम दिया जाएगा। So that's why in every state, in every country, in every country basically, they used to give a specific organizations. Those are collecting. Health का डेटा कौन collect करता है? कौन करता है? Sorry? Ministry of Health? ये कौन है? लेबर का डेटा कौन करता है?
सारे कुछ आरबीआई करते हैं, है ना? या फिर हमें कहां से मिलता है? इकोनॉमिक सर्वे में से सारा डेटा मिल जाता है, या एनएसएसओ एक नाम सुना है या सीएसओ एक नाम सुना है, बस वही होंगे दो. Please try to find out some data, like how to search out. So UNICEF maternal mortality rate का डेटा कलेक्ट करता है, मतलब वो तो इंटरनेशनल लेवल पे है, बट उन्होंने अपना डेटा UNICEF यूनिसेफ फॉर MMR maternal mortality rate का, इंडिया में जनरल ऑफ हेल्थ समथिंग लाइक डेटा इज देयर. हमारे में UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स एडोलसेंस फर्टिलिटी रेट का डेटा कलेक्ट करते हैं. इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स AFR एडोलसेंस फर्टिलिटी रेट का डेटा करते हैं. यूनिसेफ MMR का डेटा कलेक्ट करता है, ठीक है? वो डेटा करता है लेबर ब्यूरो, लेबर LABOR कैपिटल्स में लिखेगा, LABOR STA डेटाबेस, लेबर स्टार डेटाबेस. लेबर ब्यूरो, हमारे इंडिया में लेबर ब्यूरो इसका डेटा बताता है लेबर का, कि हमारे इंडिया में कितनी लेबर कौन सी है, मार्जिनल है, सेमी मार्जिनल है, स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, वो डेटा जो है लेबर ब्यूरो देता है. करेक्ट? सो इंडियाज रैंक रिगार्डिंग टू योर GNI GII gender inequality index is 132. Gender inequality index is in 2020 it is 132 and the value is 0.490. 0.490. Getting? अभी हमें हर एक की वैल्यू भी पता होनी चाहिए. ये तो हमने आपको इसकी वैल्यू बताई, 132 is a rank and 0.492 is value of this GNI, but we need to understand what is the value of this, what is the value of this, what is the value of this. Only they can calculate, क्योंकि यही क्वेश्चन क्या बनेगा, तीन वैल्यूज नीचे दी होंगी, एक वैल्यू गड़बड़ होगी, and you have to find out कौन सा वैल्यू मिसिंग है. So write down maternal mortality ratio is 122. ये हम डेटा की बात करें 21-22 की, ठीक है? ये जो डेटा मैं आपको बता रही हूँ, ये डेटा है 21-22 का. Maternal mortality rate is 122. Adolescence fertility rate is 17. Shares in parliament seat is 13. The population in secondary education is 42. This is the ranks. 42. Labor force participation rate is 19. ये रैंक्स है हमारे. गेटिंग? जब पूरे वर्ल्ड इकोनॉमीज में हमने रैंक लिए तो हमारा देखो मैटरनल मोर्टेलिटी में 122nd रैंक है, हमारा लेबर फोर्स में हमारा रैंक है 19th. सो दीज आर द रैंक्स एंड द वैल्यूज वी हैव टेकन, कि इसके बिहाफ पे इंडिया को ये रैंक्स दिए गए हैं इतने सारे कंपोनेंट्स के अंदर. ठीक है जी? द वर्ल्ड एवरेज स्कोर, राइट डाउन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, द वर्ल्ड एवरेज स्कोर ऑन GII, world average score of GII is 0.56. 0.56 means 56% loss, means 0.56 है ना, तो 56% loss in average achievement of 3 dimensions. All the 3 dimensions we have discussed. The average achievement of 3 dimensions. So we are saying there is a almost like 56% of gap because of 3 dimensions. कि अगर हमारी वैल्यू है 0.56 आई तो इसका मतलब है हमें 56% का लॉस हुआ है तीनों डायमेंशंस में मिलाकर विद रिस्पेक्ट टू HDI, कि हम उतना पीछे हैं विद रिस्पेक्ट टू HDI टू द GNI. मेल और फीमेल के बीच में गैप आ रहा है. गेटिंग? सो दैट इज टू द कैलकुलेशन ऑफ GII. Further, the last one is which one? Global gender gap. Go for the global gender gap. देखो हमने जो चारों के चारों इंडाइसेस किए हैं वो जेंडर से रिलेटेड है. बस थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन रखना है कि वो दोनों इंडाइसेस बिल्कुल अलग अलग कंपोनेंट्स को मिलके बनते थे. फर्स्ट वाला तो HDI वाला है,
एम्पावरमेंट वाले में सारी चीजें एम्पावरमेंट की हैं, जो GII है वो हेल्थ और एम्पावरमेंट का मेजरमेंट का मिक्स है। गेटिंग वो पॉइंट? जो हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, ग्लोबल जेंडर गैप, राइट डाउन, ग्लोबल जेंडर गैप Global Gender Gap Index. This is a new form of GII. It was started in basically in 2006. ये बिल्कुल रिसेंट वाला है, वो 2010 में था, ये 6 में उससे पहले से बन गया था, बट इट वाज फर्स्ट टाइम इन स्टार्टेड इन 2006 और ये कैलकुलेट किया जाता है हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका कि ये जो गैप है ये जेंडर डेवलपमेंट जेंडर ग्लोबल जेंडर गैप है वो कौन करता है? बाकी UNDP वाले कर रहे हैं सारे, यही जो है जो डिफरेंट है दैट इज हमारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म है। एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म वाज एस्टैब्लिश इन 1971। इट इज अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म क्या है? इट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशन। Its headquarters is in Geneva, Switzerland. Its headquarters is in Geneva, Switzerland. Global Gender Gap Index started in 2006. Okay. Okay. So it talks about the few different components, the 4 components they talk about. The first component is the same as economic participation. Done. Second is education attainment. वही components हम almost same रख रहे हैं जो हमने पिछले तीनों indices के अंदर लिए हैं. So first one is, the first index is economic participation. Second is education attainment. Third one is health and survival. तो इन्होंने अभी education को भी अलग कर दिया, health को भी अलग कर दिया, जो हमने सबसे पहले वाले इंडेक्स में लिया था। किसमें? HDI में, GDI में भी ले लो, हाँ HDI GDI है, तो वो दोनों ले लिए, हेल्थ का भी ले लिया, एजुकेशन का ले लिया, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ले लिया। फोर्थ वन इज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट, चारों पॉइंट्स हो गए, सारों के मिक्स हो गए, सारे कंपोनेंट्स मिक्स हो गए। हेल्थ है ना बच्चा, देखो उसमें हमने पहले वाले में सिर्फ एजुकेशन, हेल्थ और इनकम लिया, ये किसमें लिया? HDI और GDI में। जेंडर एम्पावरमेंट मेजर में हमने क्या लिए? हमने 3 लिए, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, हमारा डिसीजन मेकिंग और इकोनॉमिक रिसोर्सेस, ये सारे के सारे एम्पावरमेंट से रिलेटेड थे। ये हेल्थ, एजुकेशन और इनकम से रिलेटेड थे। इन दोनों को मिक्स करके हमने बनाया था GII, जिसमें से हमने लेबर फोर्स का एक लिया, फिर हमने लिया हेल्थ का, और यहां पे हमने ले लिया एम्पावरमेंट का। तो फर्स्ट 2 कंपोनेंट्स हमने इसके लिए, एक कंपोनेंट हमने इसका लिया। इसके बाद जो आया ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, उसमें भी हमने 4 कंपोनेंट्स ले लिए। एक तो आपकी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एक आपका ले लिया हेल्थ का, एक एजुकेशन, हेल्थ एंड सर्वाइवल, एक आपका एजुकेशन ले लिया, और लास्ट आपका ले लिया पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स एंड एम्पावरमेंट। वो एम्पावरमेंट वैसे हो गया, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। तो इन चारों को ही आपने जो डिस्कस किया वो इन्हीं सब से लिया गया है समवेयर समहाउ। सो ये हमने आपसे हमेशा से बोला है कि whenever we'll come up with the new index, it is somewhere somehow the refinement of the previous one. तो कहीं ना कहीं पीछे वालों को या तो हमने ऐड कर लिया होता है या पीछे वालों को रिफाइन कर दिया होता है, उसकी कोई ड्रॉबैक्स को, जैसे HDI में मेथोडोलॉजी चेंज कर दी,
चल वो ही रहा है। तो कहीं ना कहीं हम मेथोडोलॉजी चेंज करते रहते हैं या कंपोनेंट्स को ऐड और माइनस करते रहते हैं। सो दिस इज द लास्ट वन इन विच वी हैव टेकन हेल्थ एजुकेशन, दो एम्पावरमेंट वाले ले लिए, दो हमने एजुकेशन और हेल्थ वाले ले लिए जो पहले वाले थे HDI के लिए। सो दिस इज द एक्चुअल पिक्चर एट प्रेजेंट, वी आर गोइंग थ्रू इट एंड इन दिस वी आर रैंक इज समवेयर समहाउ इंक्रीजिंग, मतलब वी आर मूविंग टू अ गुड साइड। इनिशियली वी हैड इन it is almost 146 countries are going through with this data, in this specifically this in 2021, 22 and 23. Now we are 27th rank, then after we have 30 and lastly 135, and earlier we have 140 out of 146 ranks. अभी भी देख लो हमारी हालात क्या है। It was very much poor in 940, it's almost like from लास्ट में से खड़े थे हम। तो नाउ वी आर जस्ट इंप्रूविंग इट रिगार्डिंग टू द नंबर, द रैंक्स, दीज आर द रैंक्स, ओके। So 146 countries are measuring this and we are standing into 127th rank and our value is stands for 0.646 and so on so on. If you want to write down I can give you 629, 0.625 and अभी की is 0.66 I believe, I'm not sure about it, ये digits का मुझे डाउट है इसका, ठीक है जी। So it represents the situation of Indian economy at present कि अभी हम थोड़ा सा जेंडर के रिप्रेजेंटेशन में थोड़े से बेटर हुए कंपैरेटिवली, अपने आप से लोगों के कंपैरेटिवली भी हम बहुत पीछे चल रहे हैं। Done. In this you can write on the ranks, जैसे हमने इसी पे लिख देती हूँ, चलो मैं हर एक चीज में हमारे रैंक्स क्या हैं। सो अंडर द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वी हैव 48th रैंक, दीज आर द रैंक्स, ओके। वी हैव 48th रैंक आउट ऑफ 146 कंट्री, यहाँ पे कंट्रीज वही रहेंगी। इंडिविजुअल कंपोनेंट का भी तो रैंक निकाल रहे हैं ना हम, क्योंकि हमने क्या बोला, पहले इंडिविजुअल मीन निकालना है फिर उसका कंबाइंड मीन निकालना है। तो हम इंडिविजुअल मीन जब निकालते हैं तो उसमें हम देखते हैं हमारा 48th रैंक है पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल इन द पार्लियामेंट, हमारा इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में है हमारा 143 रैंक, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन and opportunities provided to the female, that is a 143 rank, and education attainment we have 107th rank, as well as into health we have 146th rank. So we are almost on the urge of surviving in the health components, no doubt। in ये हमारा ये वाला डेटा 21 का है, तो इट मे बी गोना अप डाउन, थोड़ा सा इसमें चेंजेस आ सकते हैं 1-2% के, गेटिंग। सो इसके साथ वैल्यूज भी हैं, इफ यू वांट आई कैन राइट डाउन द वैल्यूज टू, बट इट्स रैंक्स आर मोर देन इनफ। सो इट रिप्रेजेंट्स कि इंडिया हमारी इकोनॉमी समवेयर समहाउ हेल्थ में अभी और सर्वाइवल में फीमेल के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा डिप्राइव्ड है। नो डाउट वी हैव मैटरनल मोर्टेलिटी, एडोलसेंस फर्टिलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी को हमने काफी सरपास कर दिया है, लेकिन स्टिल वी आर ऑन द वेरी अर्ज ऑफ वेरी बैड स्टेट, ओके। आइसलैंड इज ऑन द फर्स्ट रैंक विद रिस्पेक्ट टू GGI, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। आइसलैंड हमारा टॉप 1 पे आता है। डन। फिनलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ये सब टॉप पे 1 2 3 4 5 में। फिनलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, ये सारे। और अफगानिस्तान इज अ वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री इन ऑल द कंबाइंड, गेटिंग माय पॉइंट। ये तो हम इसमें सबसे खराब पे है ना, वो सब में मिला के सबसे खराब पे, सबसे लास्ट रैंक जिसका आ रहा है वो अफगानिस्तान ही है, क्योंकि वहां पे फीमेल की फ्रीडम, फीमेल को पार्टिसिपेशन वो सब बहुत कम है। So Afghanistan is a country which represents to be very lower stage of development with respect to global level पे। तो इसमें आपका मेन कुछ खास ज्यादा नहीं है। कौन सा जी? ये 2021 का है जी। एक चीज और थी, just wait, I had one thing to share with you people. Write down the this year's title of the GGPI, Global Gender Gap का हमारा
ये एम्पावरमेंट इंडेक्स का है। जब हमने जेंडर एम्पावरमेंट इंडेक्स किया था ना, उसमें एक लाइन और लिख लीजिए, यूएन वुमेन एंड यूएनडीपी। हमने यूएनडीपी लिखा हुआ है ना, यूएन वुमेन भी लिख लीजिए। They are also collecting the data and finding the release the reports of gender empowerment index. UN women, United Nations women and UNDP. और उसका टाइटल जो है, अभी जो रिपोर्ट आ रही है GEI, जेंडर एम्पावरमेंट इंडेक्स का जो प्रेजेंट रिपोर्ट का है, उसका जो टाइटल है दैट इज द पाथ टू इक्वालिटी, द पाथ टू इक्वालिटी कॉलन women's empowerment and gender parity, women empowerment and gender parity in human development, जुलाई 2023 में ये रिपोर्ट आई है और इसका नाम है। Getting? So now they said that these all are the types of indices we have discussed. सारी फीमेल के ही थी आज हमने जो डिस्कस किए। इन सारे इंडाइसेस में चाहे ये वाला था, चाहे हमारा ये वाला है जो ग्लोबल लेवल पे है, इन सब में जो हमारा स्टेटस डे बाय डे जो इंक्रीज हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बेटर हो रहा है, उसके पीछे रीजंस क्या है? क्या रीजन हो सकते हैं? फीमेल को ज्यादा फ्रीडम मिल रही है, better government policies. Which policies? Sometimes they used to ask, जो हमारा, जैसे हमने आपसे कहा अभी कि जो नंबर ऑफ सेक्स रेशियो इन हरियाणा है, दैट इज बीइंग evolved, that is being better now, that is not a state of last stage now, वो better हो गई अब। तो उसके लिए some policies and program must be working on the few programs and policies that is to be just related to the female only। वो आप इसी इंडेक्स के अंदर ही रखेंगे, वो आप सिंपल जो हमने पॉवर्टी की प्रॉब्लम्स की ना उसमें नहीं रखेंगे, जनधन योजना वगैरह। दिस इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू द फीमेल, जो फीमेल से रिलेटेड जो पॉलिसीज बनी है, दैट इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दैट इज रिलेटेड टू protection survival of education of female, beti bachao beti padhao, to ensure the protection survival of education of female। second is महिला शक्ति केंद्र, महिला शक्ति केंद्र। This is regarding empowerment of rural opportunities and skill development. Empowerment of rural opportunities and skill development. Empowerment of rural opportunities and skill development। अब रूरल एरिया में फीमेल को स्किल डेवलपमेंट जनरेट करने के लिए राष्ट्रीय महिला कोष, महिला के वो कोष बनाया गया, जिसमें उनको फीमेल को अपलिफ्टमेंट के लिए, एम्पावरमेंट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना to empower girls, economically empower girl by opening bank accounts, economically empowered girls by opening bank accounts, कि उनको बैंक अकाउंट के थ्रू कोई सब्सिडीज हैं, कोई स्कॉलरशिप्स हैं, गवर्नमेंट कोई फैसिलिटी देना चाहती है, तो बैंक अकाउंट सबसे पहले होना चाहिए, ताकि हम जब एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं कि आपके पास आपका डिसीजन मेकिंग क्या है, कि डू यू हैव योर ऑन पैन कार्ड, डू यू हैव योर ऑन एटीएम कार्ड। तो वो जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें ये भी पूछते हैं। हम अगर किसी रूरल एरिया में जाके पूछें कि आपके पास आपका आधार कार्ड है,
तो होगा। अगर आपके पास आपका एटीएम कार्ड है, दे डोंट हैव, बिकॉज दे डोंट हैव देयर अकाउंट्स, देयर ऑल अकाउंट्स आर बीइंग गोइंग थ्रू विद द मेल पार्टनर। तो वो ये एक रिसोर्सेज, एक इकोनॉमिक अवेलेबिलिटी बताई जाती है कि अगर आपके पास अपना बैंक अकाउंट है, आपकी इंडिविजुअल साइन करने की, थंब लगाने की पावर है, तो वो आपकी इकोनॉमिक पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। राष्ट्रीय महिला कोष, दैट वी हैव डन। राष्ट्रीय महिला कोष, राष्ट्रीय महिला कोष, that was a microfinance organization to provide finance या microcredit, to provide microcredit to the poor women for their livelihood, to the poor women for their livelihood। हाँ जी, दोबारा बता देती हूँ। इट इज अ माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड माइक्रो क्रेडिट टू द पुअर वुमेन फॉर लाइवलीहुड। उनको मतलब फाइनेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, फीमेल को स्पेसिफिकली, ताकि वो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज और कुछ खोल के अपना बिजनेस चला सकें। फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप, फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें हम स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया एंड महिला ई हार्ट, महिला ई हार्ट। महिला ई हार्ट क्या होते हैं कि फीमेल के द्वारा बनाई गई चीजों का एग्जीबिशन काइंड ऑफ हार्ट लगाना, एंड इट कैन बी ऑनलाइन एज वेल, टू उनको ऑनलाइन भी उनके प्रोडक्ट्स को ईमेल एक हार्ट बनाकर ऑनलाइन उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाए। एंड इट इज टू एंटरप्रेन्योर एंड स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर आता है ESSDP, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ये स्टार्ट किए गए अर्बन एरिया के लिए भी। जो पहले वाली चीजें थी वो रूरल के लिए बेसिकली थी, ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो अर्बन एरिया के लिए। ESSDP, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, that is to open an educational institute, open an educational institute in backward blocks, backward blocks। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, that is to open up educational institutes in backward blocks, जो बिल्कुल ब्लॉक्स बैकवर्ड हैं उनमें एजुकेशन से रिगार्डिंग स्कूल्स वगैरह को ओपन करना, ताकि फीमेल जो है बैकवर्ड स्टेट पे जो पढ़ नहीं सकते उनको अपग्रेड किया जाए। एंड द लास्ट वन इज पॉलिटिकल रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन। It is about 33% of seats in Panchayati Raj institutions for women. 33% of seats in Panchayati Raj institutions are being reserved for female. That represents the status of female can be upgraded through the giving them the participation in the seats of parliaments and so on. And the way to the parliament is towards the Panchayati Raj only. So that's why we are providing some institutional and other helps to the education, health, microfinance, rural development, स्किल डेवलपमेंट, ये सारी जो भी पॉलिसीज प्रोग्राम्स बनाएगी जो फीमेल स्पेसिफाइड थी, ठीक है, ये हमारी इन्हीं के साथ जुड़ के आती हैं प्रोग्राम्स के साथ ही, कि इनमें से कौन सी प्रोग्राम की पॉलिसी लगा के हमने एजुकेशन हेल्थ को किया बड़ा। सो दीज ऑल आर इंडियन पॉलिसीज दैट here up to this point we have completed all the indices regarding to the development measures। इसके बाद हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड ग्रीन इंडेक्स, दो इंडेक्सेस और हैं, इंडेक्स ही है एसडीपी भी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी हमारा इंडेक्स ही एक तरह का, तो वो दो हमारे रह गए हैं। इधर तो विल कंटिन्यू विद द सेम, तो हमारे इंडाइसेस खत्म हो जाएंगे, विल कम टू द कंक्लूजन ऑफ इंडाइसेस, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। और वहां से हमने इंडियन इकोनॉमी में से पॉवर्टी स्टार्ट किया हुआ है, कर लिया है, नेशनल इनकम कर लिया है,
इन्फ्लेशन नहीं किया अभी हमने, ओके, इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब इंडियन इकोनॉमी के पार्ट भी हैं। आई एम ट्राइंग कि कुछ हम ऐसे टॉपिक्स करें, बीच में एक टॉपिक फिर इंडियन इकोनॉमी का छेड़ लें, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी इज ऑल अबाउट डेटा। सो इफ आई, नो डाउट इसमें मेथड्स हैं, मेजर्स हैं, पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, लेकिन ये वाला पार्ट जो है ये थोड़ा सा लाइवली है, थोड़ा सा इंडाइसिस है, कैलकुलेशन कैसे होती है। सो हम साइमल्टेनियसली चलेंगे, ये कंप्लीट करके फिर एक टॉपिक इंडियन इकोनॉमी का उठा के फिर ऐसा कोई एक और टॉपिक उठा लेंगे, ठीक है। हम लॉरेंज कर्व एंड गिनी कोएफिशिएंट भी उठा सकते हैं बीच में, वो भी थोड़ा प्रैक्टिकल काइंड ऑफ थिंग है। फिर एक अनएम्प्लॉयमेंट कर लेंगे, फिर एक टॉपिक इसका कर लेंगे, ताकि आप बिल्कुल मोनोटोनस भी ना करें फील, और एंड वी कैन गो हेड। सो वी हैव 20 minutes. If you feel we can go for a test, shall we? It's about HDI. Okay, I'm giving you a 10 minutes. You can revise, the things are with you. 10 minutes देते हैं, revise कीजिए। फिर हम एक HDI का only for 5 questions, not more than that. Only for 5 questions we'll go for HDI test. Come on.
Sorry. It is for gender sensitive direction that contribute to 5 groups. Based on the attribute relations formed the gender parity index HDI. तो ये 5 groups कौन से वाले हैं? मतलब उन्होंने जेंडर के बिहाफ पर, वैसे तो हमारे 4 ग्रुप्स है ना, HDI के 4 ग्रुप्स हैं, हाईली डेवलप, मीडियम, लो एंड वेरी लो, इसमें 5 को डिवाइड किया गया है। उन्होंने मेंशन नहीं किया बट इट इज इन 5 ग्रुप्स, लाइक 5 ग्रुप्स में उन्होंने जेंडर की इक्वालिटी के बेसिस पर उनको ग्रुप्स को डिवाइड किया है।